Hello friends, welcome to Manu Law classes. Today it is Monday and also 1st August 2022. So a new month has started and I hope that you are doing well in your CLAT preparation. Also this is the time to take the stock of what you have done and what is remaining, because we have just 4 months before CLAT comes. So it is very high time that you review your preparation and you find out the gaps in your preparation and try to fill up the gaps through it. Okay, you can also ask your question related to GK and current affairs if you are watching this video, irrespective of whether you are associated with Manu Law classes or not, and we will reply your question related to CLAT preparation. So let's start with the news today. आज का जो news है, we are going to see prevention of money laundering act, okay, and then वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी WTO. तो आज एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना. एडिटोरियल के टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन हमने कुछ दिन पहले छाबहार पोर्ट के बारे में पढ़ा था, दैट ड्यूरिंग दी ताशकंद SCO's फॉरेन मिनिस्टर्स मीट आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैड पुश्ड फॉर छाबहार पोर्ट. यहाँ पे बात छाबहार पोर्ट वर्सेस ग्वादर पोर्ट का हो गया था. इसको अभी आज हम देखेंगे और हम आज एक नए डायमेंशन की बात करेंगे रिलेटेड टू इंडिया सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ठीक है, INSTC कहते हैं इसके बारे में. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. अलॉन्ग विद दैट आई विल ऑल्सो वंस अगेन लुक एट छाबहार पोर्ट एंड ग्वादर पोर्ट. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ देन. द फर्स्ट इज appointment. So who has been recently appointed as the Delhi Police Commissioner? So 1988 batch Tamil Nadu cadre IPS officer, he has been appointed as the Delhi Police Commissioner. Okay, so Sanjay Arora. Okay, so he is an IPS officer. He is from the Tamil Nadu cadre, and he is also is known for being the part of special task force that killed or that brought down Veerappan. Okay, who was a famous gangster in Tamil Nadu, and for that he has received the Chief Minister's Gallantry Medal. Okay, then he has been a former Director General of Indo-Tibetan Border Police, and he is a 1988 batch TN cadre IPS officer. Now, there is one thing important about this appointment, that he is from Tamil Nadu cadre, and Delhi का जो काडर होता है वो एगमुट काडर होता है. एगमुट काडर का मतलब अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी काडर. सो हाउ अ तमिलनाडु काडर officer is being appointed for a post which belongs to Egmut cadre. So over here we will just see that the competent authority has approved the inter-cadre deputation. So he is going to become the Delhi Police Commissioner as the inter-cadre deputation. Okay, and he is going to function under the Union Home Ministry and its officers who belong to the Egmut cadre. Then if he is going to be the new commissioner, then who is the outgoing commissioner? Then Rakesh Asthana, he is the outgoing commissioner. Now the next is core constraints. So over here we are talking about core sector. We saw that in June 2022 core sector expanded by 12.7%. Core sector, there are 8 industries which are considered as core of Indian economy, and these 8 industries are crude oil, petroleum refinery products, then coal, natural gas, then electricity, then steel, cement and fertilizer. These 8 are called as core sectors. This core sector index, it is released by Union Ministry of Commerce and Industry. तो अगर हम देखेंगे if we compare it with May 2022 का फिगर, तो May 2022 में the figure was 19.3%. So in May 2022 core sector increased by 19.3% and in June it was 12.7%. Fine. So if you will just see, यहाँ पे हमने पिछली बार भी शनिवार को भी किया था ये न्यूज़ कि क्रूड को छोड़ के एक क्रूड ऑयल के सेक्टर में there is a drop, otherwise all sectors they have reported expansion. Then the next is कि core sector का कंट्रीब्यूशन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना है, दैट इज अबाउ 40%. ओके, मोर देन 40% कंट्रीब्यूशन, 40.27% मानते हैं उसको. दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर सेक्टर इन IIP. व्हाट इज IIP? इट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ओके, index of industrial production, it measures the volume of
okay, it defines the volume of industrial growth in an economy, and it is released by National Statistics Office or NSO, which is also called as CSO. Okay, this is the body which comes under Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI. Now coming to PMLA, Prevention of Money Laundering Act 2002. ठीक है, Prevention of Money Laundering Act 2002. So recently there has been a Supreme Court judgment which came on July 27. The name of this judgment is Vijay Madanlal Chaudhary versus Union of India. So it has upheld the various provisions of PMLA Act 2002. Now if you will just see that what is money laundering, पहला तो हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है. देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो प्रोसीड्स और जो मनी इज जनरेटेड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी एंड जिसको हम छुपाते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज एनी स्मगलिंग इज हैपनिंग. फॉर एग्जांपल स्मगलिंग से जो पैसा जनरेट हुआ, ठीक है, सो इट इज़ इलीगल मनी. ओके, ये जो इलीगल मनी है ये कैसे जनरेट हुआ है, कोई क्राइम करके. So this illegal money will be called as proceed of crime. Okay, so this will be called as proceed of crime. अगर इस proceed of crime मतलब that is money. अब इस मनी को अगर हम यूज़ करते हैं मास्क मतलब इसके सोर्स को हम छुपाते हैं, ठीक है, और इसको हम वाइट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, फाइन. सो इफ यू विल जस्ट सी that it defines the crime in section 3. So section 3 of the Prevention of Money Laundering Act says that whosoever directly or indirectly attempts to or indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime. ठीक है ना, which all includes concealment, कि पैसे को छुपाना या पैसे को अपने पास रखना या पैसे को एक्वायर करना, ठीक है ना, या ये प्रोजेक्ट करना कि इट हैज़ कम फ्रॉम अनटेंटेड प्रॉपर्टी. दिस ऑल विल बी कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. नाउ सी, अब ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है. तो यहाँ पे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्राइम कौन से क्राइम को माना जाएगा कि अगर उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. So if you will just see that these crimes are covered under Indian Penal Code 1860, such as murder, extortion, kidnapping, offense under law such as Arms Act, Immoral Trafficking Act, okay, then Copyright Act, Trademarks Act. अब यहाँ पे देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज विजय मदन लाल चौधरी, जो प्रेजेंट जजमेंट है. उसमें सुप्रीम कोर्ट सेज दैट प्रोसीड ऑफ क्राइम विल ओनली बी कॉल्ड एज सच इफ इट इज़ रिलेटेड टू स्केड्यूल ऑफेंस. मतलब कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो स्केड्यूल है जिसमें सारे क्राइम मैंशनड है, उससे अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम जनरेट हुआ है तो उसी को हम मानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, एंड और दैट इज अ स्केड्यूल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. अदरवाइज इफ अ पर्सन इज, ठीक है, अगर इस क्राइम के बाहर कोई बात है तो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट. Got it? So it means that if a person is ultimately acquitted or discharged in a case concerning the predicate offense का मतलब the offense which is the part of the schedule, तो PMLA का जो चार्ज होगा वो उसके ऊपर नहीं लगेगा. ठीक है, the next is bail conditions. ठीक, तो यहाँ पे देखिए bail conditions they are dictated by section 45. तो bail conditions में there are 2 conditions for bail for PMLA Act. So the first is that पहला तो ये है that प्रोसिक्यूटर मतलब जो गिल्टी के अगेंस्ट या जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट जो पार्टी है, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूटर. और जो लॉयर जो रिप्रेजेंट करता है ऐसे पार्टीज को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसिक्यूटर्स. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी क्रिमिनल हु हैज डन मनी लॉन्ड्रिंग एंड देन देयर इज केस विच इज़ फाइल्ड बाय स्टेट इटसेल्फ, तो जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम कहेंगे प्रोसिक्यूटर. फाइन, जैसे आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड ऑल दैट. सो द प्रोसिक्यूटर शुड बी अलाउड अ हियरिंग बिफोर अ बेल इज ग्रांटेड. सो दिस प्रोसिक्यूटर शुड बी अलाउड अ हियरिंग. फाइन, पहला तो ये है. देन द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, पहला, और ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस while being on bail.
अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्या है कि 2018 के पहले द प्रेडिकेट ऑफेंस, जितने भी प्रेडिकेट ऑफेंस थे उनके दो भाग में क्लासीफाई करते थे। एक तो वो जिनकी सज़ा 3 साल से कम है, एक बाकी अदर ऑफेंसेस। ऐसे दो क्लासिफिकेशन थे प्रेडिकेट ऑफेंस के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एक केस आया था, दैट इज कॉल्ड एज निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच डिक्लेयर्ड दिस वर्जन, दिस ट्विन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेडिकेट ऑफेंस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। नाउ व्हाट पार्लियामेंट हैज़ डन, दैट पार्लियामेंट ने क्या किया है, उसने इस क्लासिफिकेशन को डिलीट कर दिया है, ओके फाइन, and it has imposed this conditions through section 45 for all offenses under the PML। तो section 45 is related with bail, तो अब बेल के टाइम में वो जो क्लासिफिकेशन था वो आएगा। तो पहले क्या था कि पहले तो ये जो दो, यहाँ पे पटिशनर का कहना ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन था प्रेडिकेट ऑफेंस का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो स्टेट कैसे फिर से उस लॉ को डिलीट करके फिर से उसको रेक्टिफाई करके ला सकता है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो, फाइन। But this has been upheld by Supreme Court in Vijay Madan Lal Chaudhary case, where it has said that yes, state has the power to do that. The next is test of proportionality. So here it is talking about K.S. Puttaswamy versus Union of India case. So it is the case which declared the right to privacy as the fundamental right, and if state wants to restrict this right, तो जो proportionality, test of proportionality का मतलब होता है कि जितने की ज़रूरत है किसी भी क्राइम को रोकने के लिए उतना ही रिस्ट्रिक्शंस लगना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। गॉट इट, फाइन। सो दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, फाइन। तो यहाँ पे इस जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा था, द कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट नॉट इन साइलोज बट बाय गिविंग एंड टेकिंग meaning from each other, and that any invasion of a constitutionally guaranteed freedom must satisfy a test of proportionality। तो अगर स्टेट को कोई भी फंडामेंटल राइट या कोई भी राइट अगर सिटीजन से लेना है, then it should satisfy the test of proportionality। अब देखिए टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में जो लीगली जो हमको इसमें समझना देखिए क्या है, दैट देयर शुड बी अ रैशनल नेक्सस, it should not be irrational, there should be a rational nexus between the law made by the parliament and the objective it wants to achieve, ठीक है। and it also has to show कि कोई less alternative हमारे पास नहीं था, that's why we are going with this alternative। for example अगर मान लीजिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे न्यूसेंस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ गवर्नमेंट गोज विद बैनिंग दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैन गवर्नमेंट हैज़ टू शो दैट गवर्नमेंट हैड नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल वाइल डूइंग सो, एंड दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैड इम्पोज द बैन। क्योंकि आप जब बैन इम्पोज करते हो तो आपने पूरा फ्रीडम खींच लिया है, ठीक है। अब किसी के पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो अगर जो कुछ बोलना चाहता है तो वो सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके बोल सके। सो गवर्नमेंट हैज़ टू ऑब्जेक्टिफाई। अगर कोई और अल्टरनेटिव अवेलेबल है, जैसे कि पूरा सोशल मीडिया बैन करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप उस अकाउंट को सिर्फ डीएक्टिवेट करवा सकते हो, गॉट इट। सो दीज आर द अदर अल्टरनेटिव विच आर अवेलेबल विच विल सर्व द पर्पस। फॉर एग्जांपल सम यूजर्स हु आर क्रिएटिंग द न्यूसेंस, अगर हम सिर्फ उनका ही अकाउंट बैन करें और सोशल उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बैन न करें, सो दीज आर कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच द कोर्ट सीज। नाउ द नेक्स्ट इज द वीट वेवर, ठीक है। तो WTO में ना बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है जिसको कहते हैं पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, PSH, ठीक है। ये लड़ाई इंडिया और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में चलती है इन WTO, ठीक है। अब देखिए इंडिया क्या कहता है, इंडिया ये कहता है कि फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पस इंडिया हैज़ टू बाई वीट फ्रॉम इट्स फार्मर्स, ठीक है ना, and it has to supply it to the needy people at lower cost, fine, जिसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंडिया में द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो व्हाट दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ensures, PDS, it ensures that affordable quality grains are available to all
फाइन. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीडीएस. गॉट इट. सो इस पीडीएस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करती है. किसका, वीट का. ठीक है. और फिर जो नीडीज हैं उनको ये पहुंचाती है. अच्छा, गवर्नमेंट इसके साथ साथ और क्या करती है, फार्मर्स को सब्सिडी देती है. ठीक है, फार्मर्स को सब्सिडी देती है. क्यों फार्मर्स को सब्सिडी देती है, ताकि जो उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम हो एंड स्टेट कैन बाय द wheat from farmers at lower cost and then it can supply this lower cost wheat which has been procured from farmers to needy people. Got it. अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आता है. Now see, government is giving subsidy to farmers, that's why they are able to produce wheat at a lower cost. Okay, अगर अब ये lower cost wheat अगर इंटरनेशनल मार्केट में चला जाए तो ठीक है, तो क्या होगा, वो कंट्री जो अपने फार्मर्स को सब्सिडी नहीं देती हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे और इंडिया के वीट के प्राइसेस कम होंगे. तो इससे क्या होगा, देयर विल बी डिस्टॉर्शन इन ट्रेड. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन इन ट्रेड. तो ये डिस्टॉर्शन ना हो, ठीक है ना, दैट्स वाई डेवलप्ड कंट्रीज दे अपोज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग बाय इंडिया. But at the same time, India is doing the public stock holding not for exports but for feeding its huge population. तो WTO ने कुछ वेवर दिया हुआ है इंडिया को, ठीक है ना, फॉर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग. और ये वेवर क्या है, ये वेवर के साथ एक कंडीशन है कि ये जो वेवर दिया है कि दैट इंडिया कैन गिव सब्सिडी टू इट्स फार्मर फॉर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, ठीक है ना, दिस wheat cannot be used for export. Okay, so got it. So this is the whole crux of this article. The next is bringing Eurasia closer. So here we are talking about international north-south transport corridor. तो देखिए international north-south transport corridor क्या है, it is 7,200 kilometer multimodal transport corridor and that combines road, rail and maritime routes to connect Russia and India via Central Asia and Iran. And the corridor is expected to consolidate the emerging Eurasian free trade area. Now see, मैंने सैटरडे को भी बताया था कि इंडिया को अगर सेंट्रल एशिया और ईरान से अगर कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो तो इसको पाकिस्तान को बाईपास करना पड़ता है, ठीक है ना. दैट्स वाई इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन यूजिंग चाबहार पोर्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिविटी विद ईरान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. उसका एक दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि अगर हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को चाबहार पोर्ट के थ्रू रूट कर दें कि ताकि सेंट्रल एशिया, ईरान, रशिया से जो भी कुछ आ रहा है वो चाबहार पोर्ट से होते हुए इंडिया को में पहुंच जाए, तो हम पाकिस्तान को बड़े आराम से बाईपास कर सकते हैं. इसके अपोजिशन में पाकिस्तान क्या प्रपोज कर रहा है, ग्वादार पोर्ट, ठीक है, विच इज़ बीइंग डेवलप्ड अंडर CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली जो SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुआ था तो उसमें यही चाबहार वर्सेस ग्वादार का पूरा क्लैश चल रहा था. पर अब हम आते हैं INSTC पे. तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्स देखिए. सो इट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच इज़ 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. फाइन. नाउ इट विल ब्रिंग यूरेशिया मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्लोजर टू इंडिया. ठीक है. So what India is aiming is to keep open alternative supplies of precious oil and gas and a legacy of its non-alignment. ठीक है, नॉन अलाइनमेंट का मतलब कि हम न रशिया के साथ हम किसी भी सुपर पावर के साथ अलाइन नहीं होंगे. फाइन. सो हियर व्हाट इंडिया इज सिग्नलिंग इज दैट इट इज़ ऑल्सो ओपन टू एंगेजिंग विद रशिया एंड ईरान अगेंस्ट विच वेस्टर्न कंट्रीज हैव इम्पोज्ड सैंक्शन. अब हम INSTC के हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस में जाते हैं थोड़ा सा. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना, इसके ऊपर पैसे जाने की चांसेस ज़्यादा होती हैं. सो द लीगल फ्रेमवर्क फॉर INSTC इज़ प्रोवाइडेड बाय अ ट्राइलैटरल एग्रीमेंट विच वॉज साइंड बाय 3 कंट्रीज दैट इज़ इंडिया, ईरान एंड रशिया इन 2000. अब उसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसे हैं विच हैव बिकम द पार्ट ऑफ INSTC विच आर काजाख्स्तान, बेलारूस, ओमान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया एंड सीरिया. Now, if this INSTC becomes quite operational, so it is expected to reduce freight cost by 30%
and journey time by 40% in comparison with conventional deep sea route via Suez Canal. मतलब INSTC will first help us in what you can say bypassing the Suez Canal, which is the heaviest choke point in the one of the heaviest choke point in the world, and also going to reduce our freight cost. Fine. उसके बाद India is already developing a port of a 500 km Chhabar port, and it is also constructing a 500 km Chhabar Jaidan railway line. अगर ये कनेक्ट हो जाता है INSTC के साथ और ये कंप्लीट हो जाता है, so it will allow India access to Afghanistan and Central Asia. Then see some factual information जो पहले क्लैट में भी आ चुका है. The India Ports Global Limited, it is a joint venture between Jawaharlal Nehru Port Trust and Kandla Port, who are developing the Chhabar port along with Iran's Arya Banadar. उसके बाद Ircon International है, it is contributing to the construction of railway line. Then there is also special economic zone around Chhabar, which is going to create employment opportunity in that region. Okay, so if you will just see the INSTC, so it will provide an opportunity for internationalization of India's infrastructure state. Now see other benefits. पहला जो मैंने आपको बहुत बार बताया, India can now bypass Pakistan to access Afghanistan, Central Asia and beyond. That is the first important benefit of INSTC. Second is that it will complement the east-west axis of China-led Belt and Road Initiative. Fine. Now there are certain challenges that it has overshadowed by Quad Summit, which was held in May 2022, at which leaders of Quad re-emphasized the principle of free and open Indo-Pacific. ठीक है. So these are some of the initiatives which has taken the sheen away from INSTC for a time being. Then India is the founding member of INSTC, okay, and Quad both. So what does it amplify? That India is open to negotiate to work with different countries for protecting its interest. That is called as now India is moving from non-alignment to multi-alignment. तो यहाँ पे अगर if India focuses on INSTC again, then India is going to focus on multi-alignment. The next is one-liner. So India and Oman, they are going to carry out 13-day military exercise which to focus on counter-terror operation. So it is 4th edition of India-Oman joint military exercise Al-Najah 4. It will be held between Indian Army and Royal Army of Oman. कहाँ पे होगा बहुत important है. Foreign training node of Mahajan firing range from August 1 to 3. The next is again from defense. HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited, they are going to supply 12 light utility helicopters to armed force. So here 12 LUH is going to be supplied to the Indian Army. At the same time 9 LCH, that is light combat helicopter, they are being manufactured, okay, by the HAL. Then Army is also negotiating for acquiring 11 more Apache अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएस. तो यहाँ पे देखिए प्लीज मेक अ नोट, अपाचे कहाँ से खरीदने वाली है इंडिया? यूएस के साथ, यूएस से. द नेक्स्ट अगेन रिलेटेड विद पीएमएलए 2022. सो पीएमएलए वर्डेड अ हर्डल फॉर अंडर ट्रायल्स. अंडर ट्रायल्स मतलब वो लोग जिनके अगेंस्ट अभी तक जिनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, जिनको सज़ा नहीं सुनाई गई है, बट दे आर स्टिल लैंग्विशिंग इन जेल, दे आर कॉल्ड एज अंडर ट्रायल्स. हमने ये आर्टिकल एक बार पहले भी किया था दैट इंडिया में अंडर ट्रायल्स इसके लिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज द बेल प्रोविजंस आर वेरी टफ टू गेट, बेल्स आर वेरी टफ टू गेट. इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेल शुड बी अ नॉर्म, इट शुड नॉट बी एन एक्सेप्शन, एंड देयर शुड बी अ बेल एक्ट ऑन द लाइन ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स बेल एक्ट. तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था कि सेक्शन 45 जो है पीएमएलए का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है. सो नाउ दिस गेटिंग बेल अंडर सेक्शन 45 बिकम्स वेरी टफ. वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है कि द बर्डन टू प्रूव इनोसेंस डज नॉट लाई ऑन प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी बट इट लाइज ऑन द एक्यूज्ड. The next is CoWIN to grid in universal immunization. So the platform is being repurposed to support health requirement including blood and
organ donation. The next is Army Chief meets Bhutan King to boost strategic ties. So Chief of Army Staff General Manoj Pandey, he has met Bhutanese King Jigme Khesar Namgyal Wangchuk, okay, to focus on boosting the strategic tie. अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक डोकलाम प्लेटू है, ठीक है, 2017 में ये न्यूज़ में था. सो डोकलाम प्लेटू इट लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ चाइना, भूटान एंड इंडिया, ठीक है. तो चाइना, जैसे कि चाइना इंक्लूजन करता है इंडियन साइड ऑफ LAC, वैसे डोकलाम का भी केस है. सो हियर इंडिया एंड भूटान दे वर्क आउट टू वार्ड ऑफ चाइनीज थ्रेट इन डोकलाम प्लेटू. The next is Pelosi confirms Asia to silent on Taiwan. So we know that Nancy Pelosi, who is the US Speaker in House of Representative, now she is going to visit Asia. China ने पहले ही ऑब्जेक्ट किया था इनके विजिट को. So she has confirmed Asia tour, but she is silent on Taiwan, whether she is going to visit Taiwan or not. Fine. So as the news develop over here, we will read this news. इसमें इशू ये है कि जो चाइना है वो ताइवान को अलग से एक कंट्री नहीं मानता है, अलग से कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं मानता है अंडर वन चाइना पॉलिसी. एंड नाउ चाइना इज सेइंग दैट USA इज नॉट एक्नॉलेजिंग द वन चाइना पॉलिसी इन स्पाइट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट फॉर द सेम. So friends, now let's move to the health sports. So if you will just see over here, Jeremy Ladninunga, who is 19 years old, now he has won the medal in his men's 67 kg weightlifting tournament. He is from Aizawl. Okay, total weight he lifted was 300 kg, 140 kg snatch, 160 kg clean and jerk. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with Daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.